बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब थोड़ा सा ज़ोरदार आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। So thank you very much for the generous introduction. Thank you very much the organizer for providing me this opportunity to be here with you. I am thankful to the DG Bahria University. This is for next time. Forward के लिए? Okay. Okay. लंबा होना भी मसला है. डॉक्टर शाहाना को कौन नहीं जानता भाई? Everyone know her. Okay, so this event is for the MLTAB, and the organization is working very good activities for the medical technologists. So we will start the event with some activity. I need two volunteers. I need two volunteers. आज है किसी का बर्थडे? किसका बर्थडे है आज? Anybody's birthday? आयशा की बर्थडे. आयशा कहाँ पे है? हरी अब वी नीड टू वॉलेंटियर्स नहीं, फिर मैं आके आपको पिक करना है. मुझे टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो अगर आप लोग वॉलेंटियर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मेडिकल टेक्नोलॉजीज कैसे करेंगे भाई? यू नीड टू बी वॉलेंटियर ऑल द टाइम. शी वॉज अ talented researcher working in the lab on macaque monkey. And one day she was dealing with the animals, and somehow something splashed in her eyes. She got sick, and in few days time she was hospitalized and she died. It was a very well equipped laboratory with all equipments. She was very well aware of many things. She was having all the knowledge, equipments, but she made some mistake and some laboratory practices were not followed, and because of that she died. So the laboratory practices are very much important. If you are not following it, not only you are at risk, rather your patient is also at risk. You may be giving wrong reports, wrong results, and it may lead to consequences. So that's why we are emphasizing that we need to learn things and we need to refresh things. It's not all the time that you need to learn new things. Sometimes you know things, but you need to implement those practices. And that's why there are 4 stages of learning. The first stage is unconscious incompetence, that sometimes we are not aware that we are incompetent. We think that we know things. बहरिया के डीजे साहब बैठे हुए हैं. If I think that I can swim, it's very easy. मैंने इनको देखा हाथ हिलाते हुए, तो मैं भी ऐसा कर लूँगा. तो I assume that I can swim. और इधर सर मुझे ले गए समंदर में और मैंने छलांग लगाई, तो फिर मैंने इनको आवाज़ दी, बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि मैं हाथ चला रहा था. एंड मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई एम इनकॉम्पिटेंट. So the first stage that I was thinking that I am competent but I wasn't. So that stage is called unconscious incompetence, that I am unaware of my incompetency. And the next stage is very much important, that now I am aware that I am incompetent. Then now I will ask sir please आप मुझे कोई ट्रेनिंग दे दें, मुझे कोई सेशन दे दें ताकि मैं सीख पाऊँ. Otherwise if I am unaware of that incompetency, if it is in lab, that is very lethal. Just in the river or in the sea, it is lethal. If I am unaware and I am in the sea and I can't swim, then it's lethal for me. But in the same way, it's lethal for your patient and for your client as well. So we need to learn, and if you want to learn, you need to be at the cautious incompetence stage. You need to be aware that you are incompetent and you need to pay attention to your trainer. And then there are stages we call cautious competence. Then we become
trained, we aware that we are now well trained, and then we can perform those practices in the lab or whatever we are working in. And then a stage come that we become unconscious competence. आप गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल भी अटेंड करते हैं, म्यूज़िक भी चलाते हैं, आप जो है इतना ध्यान नहीं देते, बजाय कि आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे थे तो कभी आप जो है ना इधर उधर देख नहीं रहे थे, बिल्कुल आप कॉशियस थे. सो वी विल बी डूइंग. केसर साहब आ गए. केसर साहब प्लीज़ हैव अ सीट. सिकंदर साहब इनको जगह दे दें. अस्सलाम वालेकुम. Okay, so we will continue. कैसर साहब आज बैठ जाएं. Have a seat, please. Kesar Saab is the CEO of the Medishore Pharma and our good friend. So now we are doing this activity to make you realize that what are the importance of these 4 steps. We will invite these 2 volunteers and we will give them this puzzle. It's a simple puzzle. It's a very simple one. We will offer them that can you resolve this puzzle in 1 minute time, and how much is the percentage, how much % they are sure that you can perform it, and then we'll check. Usually at psychology the girls they claim more that they can easily do it, the boys worldwide less. Whoever will be claiming more, we will offer them to solve this puzzle. आप उनको बुला लें, हमें तो टाइम शॉर्ट है तो we will be quickly doing it. दोनों वॉलंटियर्स को बुला लें. कॉलर माइक नहीं है हमारे पास, या हाँ माइक एक दे दें ताकि ना एक्टिविटी सही रहे. मोबाइल माइक आप दे दें. हेलो. अच्छा मुकद्दस, ये एक पजल है मेरे पास और मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगा. आप कितने % श्योर है कि ये पजल आप सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, सिंपल सा पजल है, आपने मुझे % में बताना है. Not like 100%, but I'm surely do. Almost 100%. ओके. और करण आप बताएं, आप कितने % श्योर है कि आप ये पजल? सर 50-50. 50-50. So he is the first. So we will start with the Muqaddas. Here is the puzzle. You sit here. Yes, my claim. मुझे क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आई तो ये काफ़ी कंजूसी है. बड़ा रिस्क होता है ख़वातीन के सामने जो उनकी तारीफ करना. So Muqaddas is doing the puzzle solving thing and she's time note कर ले सर. I need some volunteer to check the time. आप लोगों को शायद टेबल नज़र नहीं आ रहा लेकिन she is doing well. हिबा आप टाइम नोट कर लें. एक्सीलेंट. सो हमारे पास कोई कैमरा होना चाहिए कि स्क्रीन पे नज़र. आई डोंट नो हाउ वी कैन डू इट. सो ये बिल्कुल ऐसा है कि एडमिरल साहब ने मुझे बोला कि आप आ जाएं, आज हम सी पे चलते हैं, और उन्हें मुझे कि आपको स्विमिंग आती है? मैंने कहा हाँ मुझे आती है. उन्होंने कहा कूदो. ओह टाइम डाउन. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. जी मुकद्दस, अभी मिनट ख़त्म हुआ और आपका जो क्लेम था वो पूरा नहीं हुआ. यू आर नो वे नियर टू 100%. अब मैं 1 मिनट आपको और दूंगा. आप कितने % श्योर है कि आप ये सॉल्व कर लेंगी? 70%. This is an excellent. So she is toward that realization. She's not competent. Gradually she is doing okay. Your time start now. She need to have something that why she will be able to do it in 1 minute time. ऐसे ये एक लम्हे में ऐसा क्या चीज़ हो जाएगा कि ये सॉल्व कर लेंगी. At least she realize कि ये नहीं कर पाएंगी. 100 से 70 पे आ गई. सो दिस इज़ अ गुड रियलाइजेशन. सम स्टूडेंट्स और सम पीपल दे आर स्टबन. वो रियलाइज वो करने मैं करूँगी, वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं ना कि ये तो बड़ा इजी काम, आसान काम है और ये इनको करना चाहिए. और ये साइकोलॉजिकली
वर्ल्ड वाइड एक्सपेरिमेंट है, पूरी दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है। तो ये नहीं कि कोई यहाँ पे हम कम काबिल हैं और यूरोप में कुछ ज़्यादा काबिल हैं, सेम जो है ना रिजल्ट्स आते हैं इसके। सो मुकद्दस इस बार हम मिनट को मज़ीद महदूद करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मुकद्दस आपके पास टाइम ख़त्म हुआ। अगर मैं 1 मिनट आपको और दूं तो आपके क्या विचार है कि आप ये सॉल्व कर लेंगे? कितने % श्योर होंगे कि आप कर? सर मैं कोशिश कर सकती हूँ। She is now realizing she is to almost at the stage of cautious incompetence. First stage was अनकॉशियस इनकॉम्पिटेंस, शी वॉज अवेयर कि ये बड़ा आसान काम है और जल्दी हो जाएगा। ओके, सो नाउ यू आर एट दी स्टेज ऑफ कॉशियस इनकॉम्पिटेंस। अभी मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपने ध्यान से देखना है। करण आपने ऑब्जर्व करना है, आपने इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन आपने भी ऑब्जर्व करना है। ये हमारा पैसिव लर्नर है। अब एक बंदे को हमने अमेरिका भेजा ट्रेनिंग के लिए, दूसरा उससे इसने सीखना है। तो इस तरह की सिचुएशन होगी। लैब में हमारे पास हर बंदा सारा ट्रेनिंग के, सर ने कहा कि सारे लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो एक एक्टिव लर्नर होता है, दूसरा पैसिव लर्नर होता है। अच्छा आ जाएं, ये माइक आप पकड़ लो मुझे सर, लेकिन आप ध्यान भी दो। ये वॉन्की नज़र आ रहे हैं ना, तो ये आपने इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में रखना है। आप देखें इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 2 बड़े ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है सबसे बड़ा जो ट्राइंगल आपने यहाँ रखना है अपने नाक की सीध में या इस डायरेक्शन में, ताकि आपको मसला ना हो। फिर ये दूसरा ट्राइंगल जो है आपने इस साइड पे रखना है, ठीक है। अब ये 3 छोटे ट्राइंगल है, उसमें सबसे बड़ा जो तीनों में वो आपने रखना है यहाँ पे इस कॉर्नर में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे आएगा। फिर ये स्क्वायर है, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये ट्राइंगल इक्वल सेम ट्राइंगल है, आप पहला वाला इधर आएगा। आखिर वाला SOP है, आपने ये पहले नहीं रखना, ठीक है। नमाज में रुकू पहले होता है, सजदा बाद में होता है ना। SOP हमें बताया कि ऐसा फॉलो करना है, तो आपने SOPs लाजमी फॉलो करने होते हैं, मिक्सअप नहीं करना होता। एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ आपको। ये बड़ा ट्राइंगल, नेक्स्ट बड़ा ट्राइंगल ये यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट जो बड़ा ट्राइंगल है वो यहाँ पे आएगा, यूँ आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका आएगा। अगर ये इस तरह नहीं है तो आप इसको कल्टी करें, इस तरह आएगा। ये आप ये यहाँ पे लगा दें, ये यहाँ पे लगा दें, ये यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो ये हमने ये कंप्लीट कर लिया, पूरा जो पजल है सॉल्व कर लिया। अभी आपको कोई क्वेश्चन है? ठीक है, यू स्टार्ट नाउ। सो लेट्स सी हाउ गुड ट्रेनर्स एम आई, और मुकद्दस कितनी अच्छी ट्रेनी है। तो लेट्स सी, इसको सही एडजस्ट करें, वही पे था लेकिन एडजस्ट करें किस तरह आएगा। नहीं, आपने उनको करने दें। और भी ऑप्शन कहाँ किस तरह आ सकता है कोई? हाँ, ये मसला है। मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ये आपने यहाँ रखने हैं। फिर आप ट्रेनिंग कैसे करेंगे जब आप ध्यान नहीं देंगे ना? यही तो मसला है। नहीं, आपने नहीं करना। फिर ये रखना है। ये अगर यू नहीं आएगा तो आपने यू कर लें तो आ जाएगा ना। थोड़ा सा आपने अकल यूज़ करनी है। आजकल बहुत महंगी है, लेकिन आपने कभी कभी इस्तेमाल। ठीक है, अब दोबारा कर लें। ठीक है, आई नो ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इससे कनेक्ट हो जाएं। आप कनेक्ट करेंगी कि जो आप चीज़ों को सिंपल समझती हैं वो आपसे होती नहीं है। आप समझती हैं कि PCR मशीन ना है, सिर्फ बटन दबाना है, और जब आप बटन दबाती हैं तो धुआं उठता है और आवाज़ आती है, और फिर आप चुप करके बंद कर लेती हैं और सुपरवाइज़र को बताती भी नहीं है कि भाई ये किसने मशीन जलाई है। मैडम के रूम में भी हमने बहुत सारे ने मशीनें जलाई थी। अब हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 1-2 मशीनें जलाई थी मैडम, हमारे ख़र्चे में आप डाल दें। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं। फिर आपसे अच्छा, ये इन्होंने रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, अब करण जो है इसको अभी आप कितने % श्योर के कर लेंगी? 100%। 100%। ठीक है, नाउ ट्रेनिंग की वजह से इनको ये कॉम्पिटेंसी आ गई कि
शी कैन डू इट। अच्छा, आप स्टार्ट करें, रिजॉल्व करें, लेकिन आंखें बंद करनी है, ठीक है? आपने आंखें बंद करनी है। अच्छा, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन रिसोर्सेज के बारे में भी इनको एहसास होना चाहिए। अभी इनको अपने ट्रेनिंग पे 100% यकीन है कि ये कर सकती है, लेकिन इसको पता नहीं है कि गाड़ी तो वो चला सकती है, पेट्रोल है, ठीक है? तो पेट्रोल भी ज़रूरी है। शी शुड बी अवेयर ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये लेबॉर्ट्री से हमें कनेक्ट करना है, ठीक है? कि शीज, अब तुम कर लो भाई करण, ठीक है? तो करण इज़ अ पैसिव लर्नर। उसने कोई चीज़ उसको हमने डायरेक्ट नहीं सिखाई थी, हमने सिंपल और उनको एज ऑब्जर्वर रखा था। लेट्स सी कि करण कितने सेकंड में करता है। ओवर कॉन्फिडेंट तो वो हो रहा था, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, देखा, ही इज़ अनदर फेज ऑफ। दूसरों को बताना इजी रहता है, लेकिन जब आपको खुद लर्न करना होता है, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। कहाँ डन हो गया? गुड, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। करण के लिए क्लैप कर भाई, आ जाए भाई, वेल डन। सो द टारगेट वॉज टू रिजॉल्व द पजल। अब मैडम को भी सिखाते हैं ताकि मैडम भी सीख जाएं, उनको नज़र नहीं आ रहा था, आप इनको बिजी रखते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द लैब सेटिंग। अब जब आप लेबॉर्ट्री में होते हैं, ये आपके इक्विपमेंट हो सकते हैं, आपका पीसीआर मशीन हो सकता है, एलाइजा मशीन हो सकता है, एंड आपने किसी को देखा था और आपने कहा कि मैं भी कर लूँगा, कर लूँगी, और बड़ा जो है ना ईजी चीज़ है। और यही हमारे यहाँ काफ़ी होता है, सेल्फ जो है ना इक्विपमेंट्स को डील करना, टेस्ट को परफॉर्म करना, और इसमें कबाहत महसूस करना कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, you should be not shy to tell about that I don't know and I need to learn thing from someone. So this is everyday's practice, and that's why we are having a lot of issues in the lab. आप अगर recall करें the lab in Wuhan in November 2019, people are working in the lab with the bait, a lot of baits they are working in, and there are worldwide a lot of interest in the baits. There are a lot of viruses in the baits which can jump into the humans anytime. And they were doing research on these baits viruses in advance. But one of the big challenge in animals, that majority of the human infection, more than 80%, they are coming from animals. And the 3 out of 4 new infections, they are coming again from the animals. So if we are not paying attention to dealing with the animals, there are great chances that we will be doing mistakes. And that might happen elsewhere, maybe in Wuhan as well, that they were working with the animals and they were doing research, though they have taken a lot of precautions, but they may have missed some of the good laboratory practices. And that's why the virus may have leaked out. Because these animals, they have a lot of pathogen like bacteria, viruses, but they are scattered, they are diluted in the whole of the environment. But if you go and catch them and do research on them, you are concentrating them and then bringing chances, more chances that to be in close contact with these animals. So we have a lot of emerging viruses, those viruses which particularly in the last 20 years, the incidence has increased tremendously. And you can see SARS, Marburg virus, West Nile viruses, chikungunya, MERS, Ebola, and now we have COVID, and after that we have monkeypox, and the current we have Nipah virus. So these are the emerging viruses which we are encountering, and there's no end to it. We may have many more and we don't know what is next. Let's keep on coming. So if we not following the good laboratory practices, particularly while dealing with animals, as I mentioned that more than 80% of the human infections, they are coming, they originated from animals.
And the new viruses or infection, 3 out of 4, again they belong to animals. So we need to be very careful while dealing with these animals, and good laboratory practices must be adopted. Otherwise, there's one chance that animal viruses or pathogen jump from animals to human, and then the cascade started, and from human to human infection that has become more easier. The first thing is difficult from animal to human, but from human to human it's become easier. So we should not allow that even to happen. And we in the South Asian region, particularly at the great risk, because a lot of activities going on with animals, poverty level is increased, the population is high, the chances of coming to contact with these pathogens is much higher than the developed area, and so is in the sub-Sahara or in the African region, as we witness Ebola and other infections that keep on happening. So the role of medical technologists is very much important. The microbiologist is very much important. That this should start from the diagnosis. If we don't have proper diagnosis, we cannot treat it. So the doctor or the physician cannot treat the patient until you give the proper report of the patient, and you do this not only for the patient, rather you do it for surveillance or contact tracing as well, the diagnosis. So these are reports throughout the world that the laboratory acquired infection, a lot of pathogen, they escape from the containment or from the tube or whatever container they were, and they release from there and people get infected. So the developed countries, they have the record. It's happening in Pakistan as well, but we don't have any proper record, and we usually deny that the lab acquired infection occurred. We better to have proper record, otherwise we will say that we don't have any laboratory acquired infection, which is not true. And the data suggests that the majority of the infection coming from the lab is from the microbiology lab, followed by the cell culture lab, microscopy, animal care, and animal experiments. So these are the data so far available, that the microbiologists, that they are the though they have more equipped with knowledge and equipments, but if you are not following the good laboratory practices, then there are great chances that you will be getting the infection, and then you can spread the laboratory acquired infection. So what exactly the good laboratory practices are? These are the standard set protocols that enable you to provide quality reporting, that you provide right information at the right time, what exactly the sample has, you properly diagnose it, and you intact, keep the containment intact, and you provide the proper reports. And it's provide not only proper report to the patient, it has a lot of quality and standard issue. If you are not doing it, you may be falsely reporting to the patient, and it can also mislead to diagnosis. अगर मिसलीड डायग्नोसिस करेंगे, हम अक्सर लैब में कहते हैं कि आप हर सैंपल को आप अपने, क्योंकि हम अपनों को ज़्यादा केयर करते हैं, अपने वालिदैन को ज़्यादा केयर करते हैं, हर सैंपल को आप अपने पेरेंट्स का सैंपल समझ के आप ट्रीट करेंगे तो आप गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिस आपके जहन में ज़्यादा आएंगी. अदरवाइज़ आप काम ख़त्म करने के चक्कर में होंगे और आप 4 बजाने के चक्कर में होंगे तो आप गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिस आपको याद ही नहीं रहेंगी. सो इफ़ यू ओन द सैंपल दैट इट इज़ ऑफ योर ओन पेरेंट्स, so you will properly do it. Otherwise, अगर आप सैंपल को प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करेंगे, एक पर्सन जो है वो हेपेटाइटिस सी नेगेटिव है, आपने उसको पॉजिटिव रिपोर्ट किया, तो मे बी वो उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगी अननेसेसरी. एक तो फाइनेंशियल लॉस होगा, दूसरा उस ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट उस पर पेशेंट पे पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे पड़ेगा. एंड सो अदरवाइज इफ समवन इज़ पॉजिटिव, आपने नेगेटिव रिपोर्ट किया, वो इन्फेक्शन वो फैलता चला जाएगा, न सिर्फ उस पेशेंट में बल्कि वो और जगह पे भी स्प्रेड करता चलेगा. तो ना सिर्फ इंडिविजुअल लॉस होगा बल्कि इकोनॉमी का, मुल्क का भी नुकसान होगा. सो हाउ टू डू थिंग्स, सिर्फ सोच से बात नहीं बनेगी, प्लान से बात नहीं बनेगी. यू नीड टू डू सर्टन एक्शन.
and plans and action together you can achieve outcomes. अगर हमारा काम है कि हम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस करें, जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो हम आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वी नीड टू हैव प्रॉपर प्लान एज वेल एज action or behavior, then we can expect the outcome. The biosafety and biosecurity is very much important, as discussed by Dr. Ali. So by definition, biosafety is prevention of the unintentional exposure to the pathogen. The difference between biosafety and biosecurity is the intention. If you are preventing yourself, the environment or your colleague to the unintentional exposure, that is biosafety. And then if you are doing it with the intentional exposure, कोई जानबूझ के कर रहा है, उससे भी आप अपने आप को इस exposure को बचाएंगे, तो उसको हम कहेंगे biosecurity. And there is a lot of new era of the biosecurity. पहले तो हम सिर्फ pathogen को समझ रहे थे, but now we have a cyber biosecurity. जीनोम से जीन और जीनोम से लिंक जो है बायोसिक्योरिटी नाउ इन्वॉल्व हो गई है. सो देयर इज़ नो बायोसेफ्टी विदाउट बायोसिक्योरिटी एंड देयर इज़ नो बायोसिक्योरिटी विदाउट बायोसेफ्टी. दीज आर बोथ इंटरलिंक्ड एंड बोथ कंबाइंड टुगेदर मेक इट बायो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर बायो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड ईच एंड एवरी लेबॉर्ट्री. सिर्फ ये है नहीं है कि ग्लव्स पहनना काफ़ी नहीं है, जब तक आप जो है अपने स्वीपर को नहीं सिखाएंगे, हाउसकीपिंग स्टाफ को नहीं सिखाएंगे कि सेग्रीगेशन क्या चीज़ है, उसको आप ट्रेन नहीं करेंगे कि सैंपल्स जो है आपके लिए भी डेंजरस है, उसको आप प्रॉपर जो है सेपरेट करें, और वो उसको भी आप ट्रेन करें कि उनकी भी ज़िंदगी इतनी कीमती है. और आखिर तक फिर आप इंश्योर करें कि जो वेस्ट है वो सेग्रीगेटेड होके और प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो. कभी कभार आप ये कहते हैं कि सिर्फ लैब में हम सेग्रीगेशन कर लेते हैं, लेकिन जब वो लैब से बाहर जाता है तो सब मिक्स हो जाता है और वो फिर गली मारने में आपको वो ट्रक से नीचे गिरता हुआ नज़र आता है. सो द की प्रिंसिपल फॉर बायो सेफ्टी आर द रिस्क असेसमेंट, कंटेनमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, SOPs और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, training and education, waste management, decontamination, incident reporting, regulatory compliance and continuous improvement. These are very much important. The main thing that I will emphasize is the risk assessment. Risk assessment is very much important until unless you are not aware of how much risky a sample is, what is the hazardous potential of that sample. So आप सिर्फ नाम सुन के या तो डर जाएंगे, इकोलाई को समझ के कोई नुकसान नहीं है, आप कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी ऑर्डर वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे, और इबोला का नाम सुन के आप वैसे डर जाएंगे. तो बीच में कोई आपके एक बैलेंस होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिस्क असेसमेंट प्रॉपरली, के उस पर देख के आपने स्टेप्स लेने हैं. तो रिस्क असेसमेंट, यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट द हैज़र्ड को आपने विजुअलाइज करना है. हैज़र्ड आपको नज़र आना चाहिए कि पेशेंट TB पेशेंट है, वो हैज़ार्डियस है, उससे सैंपल आपने ले लिया, वो ट्यूब जो है हैज़ार्डियस है, जब आप प्रोसेस करेंगे PCR ट्यूब्स वो हैज़ार्डियस है, फिर जब वेस्ट जनरेट होता है वो हैज़ार्डियस. तो आपको नज़र आना चाहिए कि ये हैज़र्ड कहाँ पे है, ट्रेवल करता हुआ आपको दिखना चाहिए, आपकी इतनी विजन होनी चाहिए. अदरवाइज़ फिर आपको पता नहीं है कि हैज़र्ड किधर है. जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कोई आपको मॉस्किटो नज़र आता है तो पोटेंशियल हमारे का ये हैज़ार्डियस है, फिर आपको कोई शेर या लाइन नज़र आता है तो हो सकता है वो उससे ज़्यादा हैज़ार्डियस हो. आपको नज़र आना चाहिए कि कहाँ पे है. देन उसके बेस करके आपने रिस्क एवेल्युएट करना है. हैज़र्ड जो है आइडेंटिफाई होता है, रिस्क एवेल्युएट होता है, उसकी असेसमेंट होती है कि पोटेंशियल कितना है कि हैज़र्ड आपको नुकसान पहुँचाएगा. HIV का सैंपल है ट्यूब के अंदर, सो वो हैज़ार्डियस तो है, लेकिन कितना रिस्क है कि वो आपको टच कर सकता है. तो आपने अगर आप ग्लव्स पहले, गाउन पहले, तो आप रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. वी कॉल इट एक्सेप्टेबल लेवल. रिस्क को आप मिटिगेट करके ब्रिंग इट टू द एक्सेप्टेबल लेवल. नाउ यू कैन टच द सैंपल, यू कैन प्रोसेस इट, बिकॉज इट्स योर जॉब टू डील विद द हैज़ार्डियस सैंपल, बट यू नीड टू हैव बैरियर इन द मिडल. एंड यू कैन डू कैपेसिटी बिल्डिंग. कभी कभार आपको मज़ीद PPEs पहननी पड़ती है. दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द. सो यूजुअली वी हैव 4 प्राइमरी कंट्रोल ऑफ द बायो सेफ्टी.
द इंजीनियरिंग कंट्रोल जिसमें बिल्डिंग है, ऑटोक्लेव है, देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, गॉगल्स है, ग्लव्स है, गाउन्स है. Standard operating procedure is very much important. Sometimes we have hi-fi lab, we have all the equipments, but we are not following the SOPs. और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हुआ कोविड में. लैब्स में हमारे पास लोग बिल्कुल सही थे, हम थाउजेंड्स ऑफ सैंपल प्रोसेस कर रहे थे, कोई बीमार नहीं हो रहा था. क्लिनिक में डॉक्टर मुसलसल बीमार हो रहे थे, इवन डेथ्स भी हो रही थी. एंड वी वेंट, जब हमने चेक किया तो सर्जिकल मास्क नीचे पहन रहे हैं, ऊपर जो है N95 पहन रहे हैं. तो भाई इसका फ़ायदा क्या है? अब आप N95 मास्क पहन रहे हैं तो उस आपको सील प्रोवाइड होनी चाहिए, आपको इंटैक्ट, वो आपने जान बचानी है या अपना N95 मास्क बचाना है. फिर आ जाके हमने उनको ट्रेनिंग दी कि भाई सर्जिकल मास्क आप नीचे ना पहने, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग दी SOPs, मतलब चीज़ें थी, रिसोर्सेज अवेलेबल थी, वर नॉट प्रॉपर यूज़ ऑफ. उसके बाद काफ़ी इन्फेक्शन कम हो गए और उन्होंने रियलाइज़ भी किया कि डॉक्टरों के अलावा भी आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रेन कर सकते हैं, जो आपकी जान बच सकती है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीडरशिप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो SOPs को इम्प्लीमेंट करें और रिसोर्सेज प्रोवाइड करें. कभी कभार हमारे पास एक विंग वीक होता है तो वी स्ट्रेंथन द अदर विंग. कंटेनमेंट लेवल काफ़ी सारी है, 1 to 4. अभी रिस्क असेसमेंट के बाद इसको थोड़ा डिस्कशन डिफरेंट साइड पे हो गई कि बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट यू शुड असाइन द कंटेनमेंट लेवल. जो ट्रेडिशनल कंटेनमेंट लेवल है, बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 and 4. 1 पे जो है नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, वो हम डील करते हैं. 2 पे पैथोजेनिक वो ऑर्गेनिज्म है जो कम कम्युनिटी के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं होते, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो है, और कम्युनिटी के बड़े पैमाने पे लोग इन्फेक्ट नहीं हो सकते, एरोसोल बेस्ड इन्फेक्शन नहीं है. TB है वो रिस्क ग्रुप 3 पैथोजन है. लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप PCR कर रहे हो और आप उसके लिमिटेड जो है जीन को डील करो तो ज़रूरी नहीं कि आपको BSL-3 चाहिए. जब आप कल्चर कर रहे हो क्योंकि उससे कम्युनिटी रिस्क पे है, तो इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट. सिर्फ ये नहीं कि आपने एबोला का नाम सुन के BSL-4 में करना है. हो सकता है अगर आपके पास नॉन पैथोजेनिक एबोला है और सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन पे आप काम कर रहे हैं, तो यू कैन डू इन BSL-2. दिस इज़ कॉल्ड रिस्क असेसमेंट. बट कन्वेंशनली BSL-4 इज़ फॉर ऑल दोज पैथोजन जो कि लीथल होते हैं, एंड वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन अवेलेबल फॉर दैम. एबोला को जिसका हम एग्जांपल देते हैं कि लेवल 3 ऑर्गेनिज्म, हमें ग्रुप 3-4 में इसको काम करना चाहिए. दीज आर दी लैब्स, BSL-3 लैब वेयर वी यूजुअली वर्क, एंड वी स्टार्टेड कोविड इन दीज लैब. जो आम यूनिवर्सिटीज़ की लैब होती हैं या कॉलेज लैब्स होती हैं, BSL-1 कहलाती हैं, जिस पर आप नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपने डील करना होता है. देन जो कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं वो BSL-2 लैब एटलीस्ट होनी चाहिए. आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि ऑटोक्लेव आपके पास एक्सेस होना चाहिए, और आपके पास सेफ्टी कैबिनेट होना चाहिए, फ्री मूड वगैरह होना चाहिए, और वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा आपके पास प्रोटोकॉल होना चाहिए. जो एरोसोल बेस पैथोजन है उसको आपने BSL-3 में डील करना है. जिस तरह TB हुआ, या अगर आपने कोई वायरस कल्चर करना है, देन यू शुड डू इट इन BSL-3. और वो वायरसेस जो बिल्कुल लीथल हैं और उसके पास कोई हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, तो BSL-4 में. इस वक्त हमारे पास कोई BSL-4 पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. वी हैव प्लेंटी ऑफ BSL-3 बट नॉट अ सिंगल BSL-4. सो SOPs आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आप SOPs फॉलो नहीं करेंगे सो यू मे गेट सिक. और इसमें डॉनिंग एंड डॉपिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने कौन सी चीज़ पहननी है और कब पहननी है. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जिस तरह डिस्कस हुआ, वी नीड टू हैव प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बट हर वक्त आपको हर चीज़ नहीं पहननी. यू शुड नॉट वेयर ऑल द टाइम ऑल द PPEs. बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट यू शुड वेयर. सो देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी, बट देयर शुड बी नो टू मच सेफ्टी कि आपका ईज़ भी कंप्रोमाइज़ हो जाए. तो ईज़ नॉट एट द सेक ऑफ सेफ्टी, एंड सेफ्टी नॉट एट द सेक ऑफ ईज़. सो ग्लव्स बहुत इम्पोर्टेंट एक PPE है, लेकिन यूजुअली हमारे जो कल्चर है लेबॉर्ट्री का, उसमें बहुत ग्लव्स को पहनना तो जाता है, लेकिन उसके रिमूवल जो है बहुत बुरी तरीके से किया जाता है. और सारा दिन लोग एक पेयर ग्लव्स पहनते हैं, उससे मोबाइल फ़ोन टच करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और सरफेसेस टच करते हैं. सो वी नीड टू हैव प्रॉपर रिमूवल ऑफ द ग्लव्स. SOPs के लिए क्लियर होनी चाहिए कि वी शुड नॉट बी टचिंग द
dirty surface with the clean surface of the skin. Otherwise, we will be infecting our स्किन और थ्रू स्किन से फिर बाकी जो है अगर वो इन्हेलेशन के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है तो इन्फेक्शन फैलेगा. यूजुअली वी कॉल्ड अ बीकिंग मेथड. वी कैन परफॉर्म दिस इन डिटेल ट्रेनिंग सेशन में कि बीकिंग मेथड इज़ अ टेक्निक थ्रू विच यू कैन रिमूव द ग्लव्स विदाउट टचिंग द क्लीन सरफेस ऑफ योर स्किन विद द डर्टी ग्लव्स. आप यू नीड टू मेक श्योर द डर्टी सरफेस ऑफ द glove should not touch your clean skin, otherwise it will be contaminated. Then the mask किस तरह पहनना है, जिस तरह हमने बताया कि क्लिनिक्स में हमने काफ़ी लोगों को उल्टा सीधा मास्क पहनते हुए देखा और वो काफ़ी बीमार हुए. Then the proper usage of the mask we can make sure कि ये सही तरीके से मास्क पहना हो. हैंड हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि हैंड हाइजीन आप प्रॉपर करें. हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, अगर पानी अवेलेबल है तो हैंड वॉशिंग इंश्योर करें. एंड देयर प्रॉपर स्टेप्स ऑफ दी हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग डे सिकंदर साहब हर साल मनाते रहते हैं WHO के दिन पे. सो अपेरेंटली इस अगेन हम समझते हैं कि हाथ धोना और हाथ गीले करना सेम चीज़ है, लेकिन जब तक आप प्रॉपरली हाथ धोएंगे नहीं आप कंटेमिनेशन जो है वो रिमूव नहीं कर सकते, पैथोजन जो है रिमूव नहीं कर सकते. यू नीड टू फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ, क्योंकि इसमें हाथों में ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे पैथोजन रह जाते हैं और बैक्टीरिया रह जाते हैं, सो दे कैन इन्फेक्ट यू. Then the steps of the donning and doffing is very much important. We should do it. Spill management हमारे पास होनी चाहिए, spill kit होनी चाहिए. डिस्पोजल वेस्ट मैनेजमेंट का हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए. विल बी क्विक बिकॉज टाइम हमारे पास शॉर्ट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. जो कोविड की हम स्टार्ट अगर कर लें, द फर्स्ट कोविड टेस्ट दैट वी स्टार्टेड एंड इट्स जस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट और द नॉन डॉक्टर जो आपका लेबॉर्ट्री स्टाफ है, इसकी एम्फेसिस आप करें. तो ये मैसेज जो है 25 जनवरी 2020 का है, जिस वक्त कोविड पाकिस्तान में नहीं था, और तब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने हाई अथॉरिटी से कि कोविड पाकिस्तान में आ गया है. उस वक्त लोग कोविड से भागते थे, लेकिन बीइंग ट्रेन पर्सनल प्रिपेयर्डनेस कितना ज़रूरी होता है. हमने अपने हाई अथॉरिटी को बताया कि कोविड चाइना में है, 3000 केसेस इस वक्त चाइना में है, पाकिस्तान में कोई केस कंफर्म नहीं हुआ, एंड वी कैन डू इट. अब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमें जो है ना वो टेस्ट हमसे चाहेगी, उस वक्त हम पे एजेंसी में होंगे. सो इफ़ यू लाइक वी कैन स्टार्ट दैट टेस्ट. ये 2020 जनवरी की हम बात कर रहे हैं. एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द मेडिकल टेक्नोलॉजी साइड. जो हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी साइड है ये वो देता है, वो डॉक्टर हमें नहीं कहता, इसकी रिक्वेस्ट नहीं करता कि ये टेस्ट करना है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. जो कोविड की हिस्ट्री है पाकिस्तान में पर्टिकुलरली इज़ कमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लैब, नॉट फ्रॉम द क्लिनिक. सो दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेबॉर्ट्री वॉज द पायनियर. दे स्टार्टेड द टेस्टिंग एंड सपोर्टेड द क्लिनिक एंड देन प्रोवाइड द टेस्टिंग. So this is the team who are working in the lab, and they provided this test, and then we offer our clinic that we can detect it, and now you can take the patient and we can support them. So these were the training that we are conducted for the lab staff throughout the province of Sindh, because in COVID everyone were afraid. अभी तो बाद में सब लोग कर रहे थे, लेकिन जब ये जनवरी 2020 की हम बात कर रहे थे, सो ऑल गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस वर इंश्योर कि वो प्रैक्टिस करें, अदरवाइज गुड क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है. एंड द स्टोरी कंटिन्यू. देन वी हैव मंकी पॉक्स, नाउ वी हैव निपा वायरस, and we are providing the services. Being a trained personnel, laboratory staff, we are providing this service to the whole province of Sindh, being a public health lab. But we are also providing the service, the training for the rest of Pakistan as well. And the communication, risk communication, very much important. You need to provide proper information to the proper to the masses. आपने आवाम को क्या बताना है, अपने पेशेंट को क्या बताना है, आपने हाई अथॉरिटी को क्या बताना है, ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. आवाम के फ़ायदे की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ आप उनसे शेयर कर सकते हैं. जो पॉलिसी मेकिंग की इन्फॉर्मेशन है आप पॉलिसी मेकर से शेयर कर लें, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को फ़ायदा हो. हर वक्त बड़े बड़े जो है ना डराने वाली बातें जो है
नहीं करनी चाहिए। कभी ज़रूरी होती है तो आपको इन्फॉर्म करना होता है कि ये थ्रेट है, पोटेंशियल थ्रेट है, तो आपको आवाम को बताना ज़रूरी है, लेकिन अननेसेसरी फेयर भी नहीं फैलाना चाहिए। तो रिस्क कम्युनिकेशन जितना है और जहाँ पे आपने कम्युनिकेट करना है, इट शुड बी डन प्रॉपरली, अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कम्युनिकेशन। एंड टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क। वी हैव, अगर आप इसमें देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द लैब स्टाफ इज़ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, दे आर प्रॉपरली ट्रेन, and throughout the COVID they served the patient and they are still there. And the good thing, none of our laboratory staff infected from the lab to COVID. So that due to good laboratory practices, and we continue it with other infection as well, because now we are dealing with monkeypox. We are receiving, कल भी हमारे पास 3 सैंपल आए, and अभी we are preparing for the Nipah virus. So next week inshallah we will have the Nipah virus PCR available. So thank you very much. The take home message is that preparedness is very much important. सर बैठे हुए हैं तो जंग की तैयारी जंग से पहले होती है, जंग के बीच में कोई तैयारी नहीं हो सकती, और डर के भागना जो है जंग का कोई सलीका नहीं है आपको। और आप हमारे वॉरियर्स हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, बट आप खाली हाथ पैथोजन के सामने नहीं आप जा सकते। आपने वेल प्रिपेयर होना है, आपको गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस आनी चाहिए कि किस तरह पैथोजन से आपको खुद बच सकते हैं। आप खुद बचेंगे तो दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, अदरवाइज आप खुद इन्फेक्ट होंगे तो आप किस तरह दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। टाइम शॉर्ट है तो हमें जल्दी करनी पड़ रही है। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में है? एंड बिसाइड दैट हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज इस वक्त अवेलेबल है। पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी है, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी है, डॉक्टर शाना बेटी भी है। तो आपके पास रिसोर्सेज के बेतहा वाफिर मकदार में लोग भी मौजूद हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी भी मौजूद है। सो आप यू आर लकी। आपने तो मेरे बिहाफ पे ऐलान कर लिया, जो मैंने अनाउंसमेंट की आपने तो सारे ऐलानात कर दिए। इंडोर्स कर दें सर आप उसे प्लीज़। ओके, अली को हम कभी मना नहीं करते बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल कोलीग ऑफ आस, और वो हमेशा मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए काम करते रहते हैं। तो इनकी बात को हम इंडोर्स करते हैं, और जैसे ये चाहेंगे वैसे हम कर लेंगे। लेकिन आप इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स आ रही है। ख़ुद अभी ये तस्वीर उन्होंने लगाई तो बैंकॉक की तस्वीर लगाई है, तो इनसे आप पूछे कि आप बैंकॉक कैसे गए थे, आप भी जा सकते हैं और बिल्कुल मेरिट पे गए। इनसे हमारी कल ही बात हुई है कि बिल्कुल ये मेरिट पे होता है, आपने अप्लाई करना है, आपकी CV एवेलुएट होती है। US में हमारे जो डोनर्स हैं वो एवेलुएट करते हैं, फिर आप इन्विटेशन मिलती है। सो ऑल यंग स्टूडेंट, यहाँ काफ़ी लोग और भी हैं जो गए हुए थे, तो इट्स कम्प्लीटली ऑन मेरिट, बट इट्स अपॉर्चुनिटी। आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली, आपको विजिट भी कर लेते, बैंकॉक भी देख लेंगे, लेकिन आपने सीखना है वहाँ से जो हमने परफॉर्म किया, बिकॉज वी वर ट्रेन। अगर हम ट्रेन नहीं होते, हमने सालों साल ट्रेनिंग की थी, उस वक्त हमें नहीं पता कि हम कब यूटिलाइज़ करेंगे। जब कोविड आया तो यूटिलाइज दैट, सो यू नीड टू बी ट्रेन प्रॉपरली। अभी हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स आ रही हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की आ रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, और रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट इन जीनोमिक्स की ट्रेनिंग्स आ रही हैं। क्योंकि सर ये बहुत पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनते जा रहा है कि जो जीनोमिक सीक्वेंसेस हैं ये हम सैंपल बाहर भिजवाते हैं, और जो अभी इस पर डिस्कशन चल रही है बहुत ज़्यादा कि इसमें ऐसा पोटेंशियल थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी का कि आप अपना सारा डेटा अगर बाहर भिजवाएंगे तो जितने भी हमारे दो तरह के इसके थ्रेट्स है। एक तो जो फार्मा के अट्रैक्शन है उसमें इंफॉर्मेशन हमारे बारे में आती है कि वो फिर हमें उनको पता होगा कि उसने जो हमारा ग्लूकोज लेवल कितना ऊपर नीचे करना है और कौन कौन सी दवाई हमें बेचनी है फिर। तो ये पोटेंशियल थ्रेट है, ये तो इकोनॉमिकल हमारा एक इशू है और हेल्थ वाइज। लेकिन उनसे ज़्यादा जो इशू है वो बायोटेररिज्म का है, और फ्यूचर जो वॉर्स हैं ना वो इस पे बेस करके होंगे। तो हमें पोटेंशली इस चीज़ को अभी से खुद अंडरस्टैंड करो कि हमें सारी सीक्वेंस अपने मुल्क के अंदर करनी है। हमने गैर ज़रूरी पे अपने सैम्पल जो है ना बाहर ममालिक नहीं भिजवाने के भी, तो हमें इस पे अवेयर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।